how you define feminism. Feminism would mean freedom to me. भाई मैं तो अपनी वाइफ को अलाउ कर देता हूँ कि वो छोटे कपड़े पहन ले। सॉरी, हु आस्क्ड फॉर परमिशन? मैं तो अलाउ कर देता हूँ अपनी वाइफ को कि वो दोस्तों के साथ उठे बैठे गाए बजाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, हु आस्क्ड फॉर परमिशन? What one thing you wish men understood about modern women? एक नैरेटिव इतना अजीब सा चल रहा है that strong women don't need love, strong women don't need support. Right. क्यों? क्योंकि हम financially independent हैं. Do you believe into कि पोएट्री से घर नहीं चलते हैं? Poetry alone may or may not feed my house. It may feed, I don't know, I haven't yet explored. At this point of time, I am happy doing both. Corporate HR और storyteller, एक corporate mindset और एक stage mindset. How you switch? So when I am in office, trust me, अपने बच्चों के फोटोग्राफ तक नहीं याद आती. Because when I am in office, then I am in office. And when I am on stage, कुछ नहीं और याद आता. Do you feel some days कि mid-30s पे as a storyteller शुरू करना, was that too late? I went through a major life-threatening experience Mhm. in my early 30s. So that was a बिल्कुल life death वाला experience. And after that experience, I almost thought I've lost it in life. Yeah. And therefore, the next day I decided, whatever comes to my heart, whatever comes to my mind, I'm going to try it. I'm not going to hold myself from doing it. हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गलबात विद आर्टिस्ट में। आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो इस बात में यकीन रखती हैं कि कहानियाँ जो है ना सुनाई नहीं जाती, कहानियों को जिया जाता है। शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ स्टोरी टेलर, spoken word artist whose performances have crossed 25 million views online and moved audience across the country. She is a winner at Times of India's Write India Season 1 and Season 3 with her stories published in national anthologies. She is a winner in Hindustan Times Women Writers Award. She named among top 20 HR voice leaders in India and one of 100 influential power women at work by People Matters, a TEDx speaker, a regular performer at Time Lit Fest, Lucknow Literature Fest, Lit O Fest Mumbai, and many more. She has been featured by organizations like Microsoft, ONGC, Gale, Maruti, and Nokia for her leadership sessions and storytelling workshops. Let's welcome my today's guest, Kena Shri. Hello. बहुत बहुत स्वागत है केना आपका और थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए, मेरे शो पे एक बार फिर से आने के लिए। और मैं क्योंकि आपके बारे में जो है मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो एक उस पॉडकास्ट में जब आपको बुलाया गया, आपको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उन्होंने बोला कि लेट्स वेलकम केना एंड केना अपने बारे में कुछ बताए। और यू बीन सो काइंड, यू बीन सो हम्बल। और आपने बोला कि कुछ नहीं यार, बस स्टोरी टेलर है और पोएट है। और मेरे मन में ये चल रहा था कि नहीं, इससे ज़्यादा है बहुत कुछ बताने के लिए। यू आर स्टोरी टेलर, यू आर स्पोकन पोएट, यू हैव अचीव्ड मेनी अवार्ड्स एंड विनिंग्स, यू आर कॉर्पोरेट एचआर। सो वाह, मतलब इतना कुछ है ना आपके बारे में बताने के लिए है कि मैं कहता हूँ इसी में पूरा एक पॉडकास्ट अलग से कर सकते हैं कि देयर सो मच टू टॉक अबाउट। कि ना सबसे पहले तो आप एक स्टोरी टेलर हैं, आप एक स्पोकन पोएट हैं, ठीक है। इसके बाद इससे पहले और इसके साथ आप कॉर्पोरेट एचआर हैं, एचआर लीडर हैं, और यू हैव डन सो मच इन योर लाइफ। नाउ माय वेरी फर्स्ट थिंग टू आस्क यू, because you started your journey as a storyteller in your mid 30s, Yes. right? And do you feel some days कि mid 30s पे as a storyteller शुरू करना, was that too late to start, or do you feel that it was the right time for you, या हर एक चीज का एक सही टाइम होता है? And along with एक stable career के साथ then you started this storytelling. What do you think about this, about your storytelling journey started in such in certain time, and how do you feel, do you feel it's too late, or what do you think about this?
I think I started pretty well on time. Okay. अगर इससे पहले शुरुआत की होती, then I would have written poems, love poems on milkshakes. Okay. I would have written poems on my first infatuation, pretending it was true love. I would have written poems on the sweet, silly things of romance than on the intensity of love, which is very interesting. Right. Which is a perspective. Right. क्या पता वो एक अलग ही दुनिया होती है, but I think over the period of time, you've seen enough. You've seen enough, you've learned enough, you've scrolled enough, you've failed enough. Yeah. और इतना कुछ होने के बाद you don't chase virality, you don't chase being viral, you chase being valuable. Wow. तो वो now it's not late, I will say it is more layered. Wow. तो अब जो काम बीच में शुरू किया, 30s में शुरू किया, जिंदगी देखने के बाद, जिंदगी समझने के बाद, फेल होने के बाद, कई बार गलतियां की, उससे सीखे, उससे उभरे, तो अब जो निकल के आ रहा है वो जिंदगी का एक अलग नजरिया है जो उस समय नहीं मिलता. So I don't think it's late. It has only added more depth to the work that I do, and I'm pretty happy about it. Yes, absolutely. And because you started as a performer late, but I'm sure that as a writer, you know, school times say, yeah, colleges times say, you've been writing, you know, in your diaries about the milkshakes and, you know, other things. I think I've spoken about it so much that everybody knows कि लिखना और पढ़ना तो फितरत में था बचपन से. मतलब I would not have breathed without it. You know, that is the essence of my living. पढ़ना, लिखना, कागज, कलम, दवात, ख्याल, एक दूसरी दुनिया, इसके बिना तो जीना सोचा ही नहीं. So I've always been doing it since childhood. But yes, to make it official, to make it public, and to be ready to perform, वो काफी लेट में हुआ. वो हुआ in my 30s. And what made you to start, you know, as कि मुझे storyteller बनना है अब, you know, मतलब sometimes, you know, इंसान सोचता है कि यार मुझे अब मेरे पास सब कुछ है, you know, I have, you know, career, I have family, I have everything. क्या उस मोमेंट पे कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, there is something, अभी भी कुछ रह गया, and that's why you started, or you know, it was always there, you were very clear about it कि एक दिन ये भी करना है. I was always an artist. Theatre बचपन से ही था. तो we used to. I belong to Allahabad. Yeah. That is a city which is very rich in art and culture and heritage. तो वहाँ पर performances होती थी, सीख भी रहे थे, and luckily I found the love of my life, my partner, who also belongs to the theatre fraternity. So both of us were chilling and having a really good time in theatre. But eventually अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए कहीं ना कहीं अपना focus सही कर लेते. वो भी, और also the fact that I like the subject that I have worked in, which is human resources, and I'm very passionate about it. Right. So absolutely at no point of time I had this in mind कि ये छोड़ करके आर्टिस्ट बनना है या आर्टिस्ट छोड़ करके ये बनना है. करना दोनों साथ था. मगर ये था जसप्रीत की ना, आप टालते जाते हैं चीज़ों को. आपको लगता है कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कर लेते हैं, बाकी तो होती रहेंगी. तो ऐसे करते करते ज़िंदगी संभल गई, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए. HR में भी एक अच्छा खासा नाम हो गया क्योंकि with the kind of things that I was contributing to the field of HR, वहाँ पर भी recognition मिल ही रही थी. I was at that point of time, and still I am a prominent name in the circuit, and we learn a lot from each other. So there's a special camaraderie and a special group we share in the HR platform also, and I was enjoying it. But then, like you said, आपको पता होता है कि ज़िंदगी में ना कुछ कमी रह गई है, कुछ तो है जो मिसिंग है. वो पूरा जो जिग्सॉ पजल है ना, उसमें एक छोटा सा पीस है जो गायब है, जिसके बिना ये पिक्चर पूरी है ही नहीं. Right. And that picture was probably me being on stage, me being in front of the camera, me sharing my work with public. I was shy, that's number one. I was scared of being judged. जो हम टेंडर एज पे यूजुअली हम सब करते हैं ये गलतियाँ. Right. And हमें लगता है कि हम बोलेंगे और 4 लोग पता नहीं क्या बातें करेंगे हमारे बारे में, उन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, हम तमाम चीज़ें तौलते रह जाते हैं. और इस चक्कर में हमें लगता है अच्छा अभी और पकने दो, थोड़ा और अच्छा करने दो, फिर शेयर करेंगे. पर उस चक्कर में ना बहुत देर हो जाती है कभी कभी. एंड आई लर्नड इट द हार्ड वे, एंड आई एम वेरी happy about the fact that the new generation, the Gen Z, and even the later millennials, they're very clear about their choices. वो अपना they know right from the beginning, and they don't fear judging as much as we did as millennials. तो उस time
I learnt it the hard way because I went through a major life-threatening experience in my early 30s. Not in my early 30s, in my late 20s rather. Okay. So that was a bilkul life death wala experience, and after that experience I almost thought I've lost it in life. I was almost there, मतलब खत्म ही हो चुका था सब कुछ. When Right. suddenly, you know, universe was kind enough, and when I came back to life, I realized that, oh my god, one day at a time bro, हाँ. यही जिंदगी है. इतनी भी लंबी प्लानिंग नहीं करनी है और इतने भी बड़े सपने नहीं देखने हैं जिसको पूरा करते करते आप सिर्फ खिचड़ी पकाते ही रहें. लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट राइट दिस मोमेंट, दिस वन मोमेंट. इस मोमेंट जो आप जिंदगी जी रहे हैं ना, यही सच्ची जिंदगी है. सही है. एंड देयरफॉर द नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड whatever comes to my heart, whatever comes to my mind, I'm going to try it. I'm not going to hold myself from doing it. I know. And that's when I put out my first writing. मतलब लिखा तो इतना कुछ था, मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार थी, पोम्स की बुक्स, मतलब स्क्रिबल्स ही कह लो उस वक्त तो, पर सब बहुत सारे, मसाला बहुत सारा था मेरे पास, बट वो करेज नहीं था शेयर करने का. राइट. तो आई पुट आउट माई फर्स्ट ब्लॉग. उस टाइम ब्लॉगिंग होती थी. यू वुड नॉट नो, यू ऑल बिलोंग टू अ डिफरेंट जनरेशन ऑल टुगेदर. सो या, आई जस्ट पुट इट आउट एंड इट वेंट वेल. सो इट वेंट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज आने लगी. फिर उसके बाद वन फाइन डे रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ लीडिंग स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया सेइंग यू आर अ थिएटर आर्टिस्ट, व्हाई डोंट यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? एंड आई एम लाइक, व्हाट, आई हैव नेवर डन इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, शुड आई नॉट? And then the founder said, कुछ नहीं, आपको बस खड़े होके बोलना है, आप भूल जाना कि वहाँ पे कैमरा है. तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था, because yeah, so I went there, I performed, and the audience, they were very kind and very generous, and they accepted me, and that's when I felt कि यार वो जो 10 मिनट स्टेज पे थे with my own personal first person story, that was almost like transcendence and meditation. And I really need to be back. तब से अब तक की जर्नी वैसे ही चल रही है. As you said that you always had a clarity, you know, क्या चीज़ पहले ज़रूरी है. Yeah. Do you believe into कि पोइट्री से घर नहीं चलते हैं, you know, और the things what first should be, you know, it's not always, I'm not saying कि पोइट्री प्रोफेशन नहीं बन सकते हैं, but again the reality we all are into, you know, जहाँ पे we are doing 9 to 5 jobs and, you know, as well as, you know, we are pursuing as a passion. What your thought has on this? आप क्या मानते हो कि पोइट्री जो है घर चला सकती हैं, और if yes, then how one can, you know, carry you know, that as a profession, you know, over the, you know, outside there, कि यार पोइट्री से कहाँ घर चलते हैं, लिटरेचर से कहाँ चलते हैं यार, है ना. यू हैव टू कुछ ना कुछ साइड बाय साइड आपको करना पड़ेगा, या पोइट्री को आपको साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, यू नो, पोइट्री एज अ करियर? एक लेंस से पूरी दुनिया कभी देखी नहीं जा सकती. वो लेंस हर एक के लिए अलग होती है. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दो अलग लोगों की सिचुएशंस बिल्कुल अलग हो सकती हैं. कुछ लोगों के लिए पोइट्री कैन वर्क लाइक मैजिक, दे कैन रन देयर फैमिलीज आउट ऑफ पोइट्री एंड आउट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड आउट ऑफ आर्ट, एंड दे हैव बीन ब्यूटिफुली डूइंग इट. हमारी सर्किट में इतने सारे लोग हैं जिनकी पोइट्री ना सिर्फ उनके लिए एक अगेन ट्रांसेंडेंस का जरिया है, बल्कि उनका घर भी चलाता है. राइट. पर कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की सिचुएशन एक दूसरे इंसान की भी हो, जिसके पास प्रॉब्ली लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, या उनके पास सिचुएशंस ऐसी हैं कि जब वो पीछे देखते हैं और उनको दिखता है कि यार सिर्फ पोइट्री करने से शायद मेरे पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आएगी कि मैं अपनी माँ को खुश देख सकूँ, अपने बच्चों को वो लग्जूरियस लाइफ दे सकूँ, या फिर मेरी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिनको मैं पूरा कर सकूँ, मेरे ऊपर कुछ कर्ज है जिसे मैं उतार सकूँ, और उसको उतारने के लिए मुझे जो एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है वो शायद सिर्फ आर्ट या पोइट्री से नहीं मिलेगा, मुझे उसके लिए कुछ और भी करना पड़ सकता है. वैसे भी लोग हैं, और वैसे लोग probably I perhaps belong to that category, right, जिसे लगता है कि दोनों बैलेंस करके I am better off. Poetry alone may or may not feed my house. It may feed, I don't know, I haven't yet explored. At this point of time, I am happy doing both. और मेरे reasons केवल और केवल financial नहीं है. मेरे reasons ये भी हैं कि सिर्फ एक चीज़ करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, ऐसा मेरा मानना है.
Wow. यू नो एज अ पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, और मेरी तरह और भी लोग होंगे, उन्हें 4-5 चीज़ें एक साथ करना अच्छा लगता है. Hmm. अगर मेरे से ना पोइट्री, सिर्फ पोइट्री कराओ और कहो बाकी चीज़ें छोड़ दो, नहीं हो पाएगा. Hmm. मेरे को ट्रैवलिंग भी करनी है, मेरे को क्या खाना भी बनाना है, गार्डनिंग भी करनी है, नए एक्सपीरियंसेस भी सीखने हैं, लेने हैं. 10 चीज़ें एक साथ करनी है. तो वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर इज समथिंग दैट आई विल नेवर चूज. Right. I will do 10 things at the same time and try to strike a balance, because probably I can do it. Again, सबकी situation अलग हो सकती है. But of course, I have known people who are doing poetry so beautifully and so brilliantly कि उनका घर चलता भी है और वो दूसरों को देने की भी position में होते हैं. तो situation दोनों हो सकती है, but let's not compare one with the other. Absolutely, Yeah. absolutely. But a person should wait, है ना? ये एक हमेशा इंतज़ार करते रहना चाहिए उस इंसान को जो दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और एक दिन इस उम्मीद के साथ बैठा है कि एक दिन तो कुछ उसका भी दिन आएगा, है ना? और वो एज अ बिकॉज देयर आर पीपल दोज आर स्टिल वर्किंग हार्ड, एंड दे आर वेटिंग कि किसी दिन ऐसा दिन आएगा जिस 9 to 5 छोड़ने का मौका मिलेगा, जिस दिन पोइट्री एज अ करियर बना पाएंगे, है ना? और है जिन्होंने बनाया भी है, राइट? सो यू फील दैट इंतज़ार करते रहो, एंड आपका टाइम आता है. डू यू फील मतलब डू यू बिलीव इन टू दिस कि टाइम आता है, आपका दिन आता है? I get your point. I'll rephrase it. I'll not say कि इंतज़ार करते रहो, because इंतज़ार करते करते कभी कभी बहुत कुछ हाथ से निकल जाता क्या बात है. ओके. है. लेकिन to put it in another way, never quit. Never call it a day. ओके. Never give up on it. एक आम इंसान, एक एब्सोल्युटली आम इंसान जो सुबह सुबह घर से अपने 9 से 5 की नौकरी के लिए निकलता है, वो अपने बटुए में क्या क्या रखता है? ATM कार्ड रखता है, क्रेडिट कार्ड्स रखता है, आई कार्ड रखता है, कुछ चवन्नी रखता है, कुछ अठन्नी रखता है, कुछ पैसे रखता है, कुछ फोटोग्राफ्स रखता है, और ये जेब में डाल करके वो घर से निकलता है काम पे. पूरा दिन वो काम वाम करता है, लौट के थक के आता है, लौट के आके जब अपने घर वालों के चेहरे पे वो एक सुकून देखता है, तो उसे बहुत बहुत तसल्ली मिलती है कि आज का दिन ठीक ही निकला. फिर वो जाता है और अपने कमरे में बिस्तर पे जाके सो जाता है, और सोते वक्त उसको अपना बटुआ दिखाई देता है. वो बटुआ खोलता है और उसमें एक जगह हमेशा खाली होती है. वो जगह उन सपनों की जो उसने कभी देखे क्या थे, बात है. और वो सपने अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, एज इफ उसको बोल रहे हो तुम कहाँ हो, कम बैक. वो बटुआ बंद करता है और बोलता है आई विल डू इट, एंड ही डज इट. व्हेन आई डोंट नो, but he does it. He doesn't give up on that dream. राइट. So when you say इंतज़ार करते हैं, ठीक है, इंतज़ार करते हैं, हम उसके लिए काम भी करते हैं. हो सकता है वो वक्त बहुत लंबा हो सकता है वो कल हो जाए, एक वायरल कुछ हो जाए और कल ही हो जाए. But the thing is, don't give up on it, because that बटुआ, that सपना is not giving up on you. वो आपको हर रोज़ याद दिलाता है. एंड डोंट गिव अप, इवन हो सकता कभी ना हो. Do you मतलब what you think of like this? इसमें I want to go with all points, कि all Absolutely, ना, हम हैं किस दोनों लिए? सिक्के के पहलू है ना. Absolutely. So एक शेक्सपियर ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही थी. Things won are done. Things won are done. Joy's soul lies in the journey. So it is not about at the end of the day मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, जब वो जंगल खुलेगा तो सामने पहाड़ आएंगे, फूल आएंगे. आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा. whether it will be name, fame, respect, whether it will be claps, or whether I'll be lapped by people. The joy is in the jungle. The joy is in brewing on your dreams, working on your dreams, writing one line a day, Right. living it up. जो आप कहते हैं ना, कहानियाँ लिखना एक चीज़ है, कहानियों को जीना एक जीना एक चीज़ चीज़ है. है. तो उस जंगल से जो आप यात्रा कर रहे होते हैं, आई थिंक उसका जो डिलाइट है और वो ब्यूटी, वो तो आपसे कोई ले ही नहीं सकता. क्या बात है. और शाहरुख कहता है ना उसमें कि ये कुछ मिनट आपसे जब आप खेल रहे होते हैं, जी. वो आपसे कोई नहीं ले सकता. तो उस यात्रा में जो डिलाइट है, जो जॉयस हैं, जो अप्स हैं, जो डाउन्स हैं, जो लेसन्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो आपसे कौन ले सकता है? क्या बात. वही तो जिंदगी है. कॉर्पोरेट HR और स्टोरी टेलर, एक कॉर्पोरेट माइंडसेट और एक स्टेज माइंडसेट. How you switch, like, and yeah, and absolutely not about only the physically being there, working hours, and उसके बाद फिर shoots and events and shows, but again mentally, किस तरह से खुद को चेंज किया जाता है. बिकॉज
these are both, you know, दो जो एक पैरेलल दुनिया है, you know, बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट। जो कॉर्पोरेट है, डेटा और नंबर्स और एक्सेल्स में पूरा की पूरी दुनिया है, बट जो स्टेज है वो पूरी की पूरी एक अपनी यूटोपियन वर्ल्ड में है, ठीक है। तो हाउ यू स्विच योर माइंडसेट, यू नो, बिटवीन बोथ? What a question is this? So, you know, corporate gives me structure. ओके, Art gives me soul. क्या बात है, And one is incomplete without the other for me. वाह, कोई भी स्ट्रक्चर बिना आत्मा के अधूरा है, कोई भी आत्मा बिना स्केलेटल के, बिना स्ट्रक्चर के अधूरी है। एंड आई फाइंड द बैलेंस समवेयर इन बिटवीन। ये बात अलग है कि कॉर्पोरेट जो आपको चीज़ें सिखा जाता है ना, अपने तरीके से, अपने अंदाज से, वो शायद कोई और चीज़ें किसी और तरीके से सीखना थोड़ा मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, Okay. कीप वर्किंग, ऊपर कैमरा हो चाहे ना हो, कोई पूछे या ना पूछे, हम्म, डेडलाइंस, हम्म, you know it's I know. Jaspreet, you know when I there is a call, कल सुबह 6 बजे तक मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए, आप सब डाल देते हैं अपना बिल्कुल, उसमें, बिल्कुल सही और बात। आप अपना वो पोटेंशियल अनलीश करते हैं जो आपको खुद नहीं पता कि आप कर सकते हैं, राइट, जो आप लेजरली आर्ट वाली राइटिंग में शायद नहीं I एक्सप्लोर know, कर पाएंगे। I know. ऑल्सो द डिसिप्लिन, द कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, networking, the power of networking, the little power in politics and agency that we understand in corporate. So it teaches you structure, ओके, एक बुनियाद जिस पे चीज़ें दुनिया और दुनियादारी चलती है। मुझे, और दूसरी तरफ है art, writing, storytelling, poetry, audience, like you yourself said. Yeah. Typically it is a utopian world. It Yeah. is where आप सब structures तोड़ देते I हैं, know. rules तोड़ देते हैं, सब टूट जाता है, आप वहाँ जाके कहते हैं ये मेरी जगह है। वो अपने आप में एक बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट हो जाता है आपके लिए। एंड यू फील वो Yeah. दोनों का बैलेंस होना चाहिए, राइट? आपको इधर का उधर यूज करना आना चाहिए। Wow. You should know how to use your Nice. corporate structure while you do art. Do it with discipline, do it with self motivation, do it for deadlines. अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दी कि कल तक मेरा पीस आप तक पहुंच जाएगा, then honor the brand, Right. honor the commitment. सपोज आपके पास 2 ब्रांड्स है, एक बहुत अच्छा ब्रांड आया है जो आपको कुछ कम कमर्शियल्स दे रहा है, दूसरा ब्रांड है जो थोड़ा ज्यादा दे रहा है, मगर आपने अगर छोटे ब्रांड के साथ कमिटमेंट कर ली तो कर ली, you will not break the deal. There's a certain amount of ethics and morality and Right. structure which goes from corporate into this. And the other way also happens हाँ. कि जब ये वाला वहाँ पर कभी कभी ना, आप जब अपने लोगों से बात करते हैं, आप हर टाइम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात नहीं कर Yeah, सकते, I know. आप हर टाइम टास्क और टारगेट की बात नहीं कर सकते, Yeah. आप वहाँ भी कहानियां सुनाते आई हैं, नो, और वही इनफॉर्मल टॉक्स ही आपको जीने का एक स्पार्क देते हैं उधर। अभी 2025 में ना टचवुड लाइफ हैज बीन वेरी काइंड, but I still remember the time, you know, 2021 22 around, you know, and at that time पे, you know, I used to work in, you know, one of customer support centers, and was working for UK process. And जो शिफ्ट्स होती थी ना वो रात को 8 बजे शुरू होती थी और सुबह 5 बजे ख़त्म होती थी, and back to back calls, you know, we used to take, and you know, we used to work there पूरी रात शिफ्ट करने के बाद। एंड दैट टाइम इट वाज द टाइम, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड लिखूं दिल से, यू नो, एंड शोज चल रहे थे, यू नो, चीज़ें हो रही थी, नई नई चीज़ें हो रही थी, यू नो, कनेक्शंस बन रहे थे, लॉट ऑफ थिंग्स वर, यू नो, हैपनिंग। एंड मुझे याद है कि उस टाइम पे कुछ ऐसे सिर्फ 15,000 रुपये तनख्वाह होती थी, और 15,000 रुपये की तनख्वाह, पूरी रात की 8-9 घंटे की शिफ्ट, उसके बाद भी आई स्टिल रिमेंबर, आज भी मैं कभी सोचता हूँ कैसे मैनेज हुआ है। आज मुझे अभी तक नहीं समझ आता है कि सुबह आप 5 बजे वहाँ से निकले हो, 6 बजे घर आ रहे हो, आप फटाफट खा पीते हो, उसके बाद 8-9 बजे तक सोते हो, 9 बजे फिर उठ के यू गो टू द वेन्यू, यू नो, अरेंज थिंग्स, यू नो, क्योंकि शाम को शो है, 4 बजे शो लग रहा है, शो खत्म करते हो 7 बजे, 8 बजे फिर ऑफिस जाके बैठ रहे हो। एंड आई वाज लाइक वाओ, वो क्या दिन थे। Jaspreet, there's this kick which art gives you, I जो know. आपको फ्यूल का काम करती है, और आपकी गाड़ी ऐसे चलती रहती है, आपको थकान पता नहीं चलेगी। I know. अगर आपको वो 8 घंटे का ऑफिस का काम 12-14 घंटे करना पड़े, आप थक जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको 8 + 8 16 घंटे डिवाइड हो जाए ना, आपको 16 घंटे बाद भी लगेगा अरे मेरे पास मोर एनर्जी बात है, है, कुछ बिल्कुल। और लाओ, Yes. देखो क्या कर सकते हैं। ऑल्सो द फैक्ट दैट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, आई वॉन्ट टू बट आई एम नॉट एबल टू, एंड आई टोटली गेट देम, Yeah. बिकॉज कोई नॉट जस्ट आर्ट, भाई आपका शौक गार्डनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, 50 और चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते इवन दो यू वांट टू। या, मेरा एक बड़ा सिंपल सा उनसे सवाल है, आज के दिन का ना
अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लो जरा, सही बात है, बिल्कुल सही बस फोन उठाओ और देखो कि कितना टाइम ना उस स्क्रीन को दिया है. दिया है. You will be surprised if you track your own history for the past 1 month. I've done that. I've felt very bad about myself and I've quit now. Yeah. At least I'm trying to. हम 4 से 10 से बहुत आराम से इतना टाइम ना केवल डूम स्क्रोलिंग को देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमें नहीं पता. हाँ. बस वो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम भी सेव कर लेना तो हो सकता है आप शेफ ना बन पाए, हो सकता है आज आप रात की खीर ही बना ले घर पे. वो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा. मैं वही मेरे को भी यही चीजें मेरे मन में आती हैं कि अब जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, दे so much care about work life balance and all, and after that even it's been took me 6 months to restart, and I was like यार अब सब कुछ है, touch wood वाहिगुरु, I am financially stable, I am like I have good job, I'm doing everything well, and that took me to restart things, my things what I like to do is in 6 months. And there was a time when I used to work कि 8 घंटे काम करो, फिर 8 घंटे आप इधर दे रहे हो, फिर उसके बाद you are very okay to go with night shifts, तो फिर जाना. So I amazed, and that's true कि शिकायतें हैं हमारे पास, कि एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास कि शायद मेरे पास सोर्सेस नहीं है. मैंने उस टाइम पे काम किया जब सोर्सेस थे नहीं, अब तो मेरे पास रिसोर्सेस हैं, पीपल, एंड मेरे लिए तो हमेशा लोग ही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वो होता है, रिसोर्स होते हैं, एंड आई स्टिल बिलीव कि वी आर ह्यूमन एंड वी नीड ह्यूमन, आई बिलीव इन टू. सो या देयर आर टू मिथ्स दैट आई वांट टू बस्ट हियर. जो हम लोगों को ना वो एक दवा दे दी गई थी इन द 80s एंड 90s एंड 2000s में भी, वर्क लाइफ बैलेंस. इट्स अ कंप्लीट मिथ, आई एम सो सॉरी. मैं बोलना चाहता था बट दिस अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इसपे अच्छी खासी ट्रोलिंग भी हो जाएगी, बट this is how I have seen life in last couple of years. Right. There is nothing called work life balance. True. It's either work or it's either life. So when I am in office, trust me, अपने बच्चों के फोटोग्राफ तक नहीं याद आती, because when I'm in office, then I'm in office. I have targets to meet, I have promises to keep, and I'm totally immersed in it. There is no life, there is only and only work. And when I am on stage, कुछ नहीं और याद आता. सही बात है, सिर्फ माइक दिखता है, ऑडियंस दिखती है, मेरे लोग दिखते हैं. So there's nothing called strike a balance between the two. It's not a balance, you have to choose. It's always an either or. Very good. And it is either work plus life. Exactly. It's not a balance sort of a thing. That's one thing. And secondly, multitasking is the biggest myth I've busted in last couple of years. हम ऐसा लगता था कि हम 5 चीजें एक साथ कर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता. There is nothing called multitasking. Again, it's always linear. अगर आपने 5 टास्क भी लिया है ना, आपको एक कंप्लीट करके ही दूसरा उठाएंगे आप, तभी आपको सबकी क्वालिटी इंटैक्ट मिलेगी. अगर आप सोच रहे हो कि ना मैं गाना गाते गाते पोएट्री लिख लूं, दोनों में से दोनों की ही क्वालिटी थोड़ी सी नीचे जाएगी. सो अगेन, इफ यू टेक 5 टास्क्स एट अ टाइम, यू हैव टू कंप्लीट इट विद ऑल शिद्दत बिफोर मूविंग ऑन टू अनदर टास्क. इट्स मिथ, और इसमें जीना भी नहीं चाहिए इस मुगालते में. कि ना आपकी जो पीसेस होते हैं, जो आपकी जो स्टोरीज होती हैं और पोइट्रीज होती हैं, not every time but most often they talk about womenhood, they talk about freedom, they talk about equality. So my question is, what does feminism mean to you personally as a woman, as a wife, and as a professional leader? So I would ask you as a general opinion what is feminism of, but as your personality, how you define feminism as a woman, as a wife, as a professional leader. Okay, this is absolutely my 2 cents. For me, feminism is not about shouting out loudly that I want equality. It is about doing things and practicing it in daily life, which fetches me equality. And I want to do it very quietly, but do it very impactfully. Okay. As a woman, feminism would mean freedom to me. Okay. To be able to exercise choices that I want in life, right, without interference of anybody, not at the cost of anybody. See, understand, I'm not harming anyone. Okay. I'm not asking anyone for anything. Right. पर उसके बावजूद I should be उसके बावजूद भी अगर आप मेरे को मेरे choices नहीं लेने दे रहे हैं, then I have a problem. So for me, it is freedom as a woman. As a wife, feminism is partnership and not permission.
तो आप जिंदगी में किसी के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन साथी के तौर पे, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप साइकिल के 2 पहियों की तरह हैं जो पार्टनरशिप पे ही चलेगा। राइट। भाई मैं तो अपनी वाइफ को अलाउ कर देता हूँ कि वो छोटे कपड़े पहन ले। सॉरी, हु आस्क्ड फॉर परमिशन? राइट। मैं तो अलाउ कर देता हूँ अपनी वाइफ को कि वो अपना काम वाम करे, घूमे फिरे। जी। सॉरी, हु आस्क्ड फॉर परमिशन? राइट। मैं तो अलाउ कर देता हूँ अपनी वाइफ को कि वो दोस्तों के साथ उठे बैठे गाए बजाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, हु आस्क्ड फॉर परमिशन? परमिशन तभी होता है जब वो तराजू के पलड़े ऊपर नीचे हों। Okay. एक ऊपर हो और एक नीचे हो, जो शादी में नहीं चल सकता, जो आपने इस जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं चल सकता, जो पाक है, जिसकी बुनियाद स्ट्रांग है। इट हैज टू बी अ पार्टनरशिप, वी बोथ प्ले टुगेदर। किसी में आप ज्यादा है, किसी में हम कम है, और हम दोनों एक दूसरे के पूरक है। दैट इज व्हाट पार्टनरशिप इज। एंड एज अ कॉर्पोरेट लीडर, ओके, आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। इट इज the things that I have gone through, my female colleagues, my female fraternity should not go through, especially in terms of patriarchy. Even if I am being pulled down by glass ceiling or by certain other things, I should still be able to lift my colleagues up. If I am able to do that, that's feminism to me. मैं आज ही शायद ना एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ना वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट लाइक एक उसका पीस जो भी है, इट समहाउ आई डोंट partially I partially agree, I don't fully agree with him, but कुछ चीज़ें कुछ इतने सटल पॉइंट्स थे। ही सेड कि फ्रीडम में एक ऐसी मिथ दी गई है हम सबके बीच में जहाँ पे ना वी आर इनटू की फ्रीडम लेने की जगह ना वी आर ट्राइंग टू प्रूव कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम ना, कि वेदर व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी, फ्रीडम, फेमिनिज्म, वी जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अगर फ्री होने की बात की जाए तो फ्री है कौन? वी ऑल आर बाउंड विद सम चैलेंजेस, विद सम कुछ ना कुछ तो हम सब बंधे ही हुए हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जब हम ये कहें कि यार औरत की इस आज़ादी की बात या मर्द की इस आज़ादी की बात, या तो हर इंसान के एक अपने चैलेंज है। सो पहली चीज़ कि फ्रीडम जो है दैट इज समथिंग वी डोंट नीड टू प्रूव इट, वी जस्ट इट इज़ अबाउट द चॉइसेस, दैट व्हाट यू सेड कि ये मेरी चॉइस है, मेरी इस चॉइस के ऊपर I would, you may give me the opinion कि okay this is your opinion, your feedback, but again it should be my choice, it should be किसी दूसरे से का opinion मेरे पे influence करे, right? And that hit me so hard कि हाँ बात सही है कि there's nothing kind of freedom today we are talking about, we are just all talking about the proving things. We when it comes to the feminism, we are just trying to, that's sad, that maybe controversial होगा, but we are trying to prove कि in terms of उस feminism का नाम ले लेके where we should actually talk about real topics. We are not looking at those things, we अभी भी जहाँ पे बड़े माइक्रो लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, in terms of tone, in terms of words. WhatsApp forwards. हाँ WhatsApp forwards में मैक्सिमम मजाक शादी पर बनता है। yeah. Oh my God, you're hanging around with that girl. अरे तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई। ऐसे जोक्स अभी भी चल रहे हैं। Right. Which is okay. We understand कि अगर आपका बॉयज का एक ग्रुप है, आपस में बहुत प्यारी सी एक दोस्ती है, तो आप छोटे मोटे मजाक करते होंगे। Absolutely okay with it. But the moment you make it, in a public place and you're okay with it, that is where we have a point. Because suddenly girls के भी अपने जोक्स होते हैं, हम भी आपस में जोक्स क्रैक करते हैं, but only when we have very करीब का रिश्ता and we know how to pass it off, we are not taking it seriously. The moment you are taking it seriously, you're undermining the entire concept of equality. And you're absolutely right when you say that, yes, sometimes revolution is confused with rebellion. दोनों में बड़ा अंतर है। क्या बात है? Revolution बिल्कुल एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। उसको आप रिबेलियन का नाम ना दें प्लीज। रिबेलियन एक कंपोनेंट हो सकता है उस रेवोल्यूशन का, बट द आइडिया इज नॉट टू प्रूव पीपल एंड थिंग्स रॉन्ग, द आइडिया इज टू प्रूव पीपल एंड थिंग्स राइट। एब्सोल्युटली। जो सही है हमें उसका साथ देना है, दूसरे को काट करके हमारी लाइन आगे नहीं बढ़ेगी, अपनी लाइन बड़ी करके ही हम आगे जा सकते हैं। और वो जहाँ तक चॉइसेस की बात है, the day I am able to tell my daughter, hey, you want to be a CEO of a company, go for it. You want to be a stay-at-home mom, go for it. And nothing is lesser. The day I'm able to convince her, and the day she's able to internalize this feeling,
कि choices कैसी भी हो, nothing is lesser and I'm able to make a choice. Right. Is the day. Along with this, one thing what I really want to know that what one thing you wish men understood about modern women. Oh, wonderful. Uh-huh. Oh, wonderful. Please. Let's get talking. Yeah, but there could be 100 things. so I want to ask you that do you feel that because the time we are into and that you know अब जिस तरह से you know we have started talking about you know Kena का favorite topic आ गया do you see any one thing you know that men understood about modern women or do you wish कि कोई ऐसी एक बात होनी चाहिए that men should really understand you know कि यहाँ पे इस do you have something in your mind कि यार मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए बात तमाम चीजें हैं लेकिन एक बहुत चीज जो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन फर्स्ट पिछले कुछ सालों में ना हमने फेमिनिज्म को इवॉल्व होते देखा है सो women have started voicing up. We have started coming forward, we assert our points, we claim our rights. हमें पता है कब कहाँ कैसे बात रखनी है और कैसे अपनी बात मनवानी है क्योंकि ये हमारा हक है, ये सब हमें पता है. So we have emerged as somebody who is strong, fierce, you know, go-getter. However, you know, एक narrative इतना अजीब सा चल रहा है that strong women don't need love. Strong women don't need support. अरे ये तो strong है, they don't even need, you know, they are on their own. right. क्यों? क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, हमें ज़रूरत पड़े तो हम हर जगह अपनी आवाज़ उठाते हैं और हम अपना काम भी निकाल ही लेते हैं. right. तो हम ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं किसी की ज़रूरत नहीं है. कम ऑन, चेंज दैट नैरेटिव. स्ट्रेंथ और बीइंग स्ट्रॉन्ग डज नॉट मीन you don't need love and support. Of course you need it. You're just not falling for crumbs. बिल्कुल. You've stopped saying yes to everything. right. You've just made up your mind strong enough. But that does not mean that you don't need love, you don't need support. Of course you need allies. Of course you need partners. Of course you need people respecting you. You just don't need people rescuing you. तो मॉडर्न विमेन के बारे में प्लीज़ ये मिथ थोड़ा सा बदलें और ये नैरेटिव थोड़ा सा चेंज करें. वी नीड इंटीमेसी, love and care, as well as independence, financial freedom, and the freedom to make choices. बिल्कुल. So it's and that's very true. मतलब I see myself personally, you know, I'm a very emotional dependent person, you know, and I've always been and I always seek, you know, मुझे लगता भी ऐसे कि मर्द को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर किसी की है तो वो एक औरत की है क्योंकि जहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी की बात आती है I feel, you know, that's again, it's me. You need so much from you learn so much from the opposite gender. Right. I think men also learn you learn empathy from them. You learn how to love, you learn how to be available. Right. You learn how to be a nurturer, a giver, a carer. On the other hand, women learn so much from men. बिल्कुल. The moment, you know, आप करते तो देखो अपनी मर्जी का ही है जो आपको मन करे, लेकिन अगर बगल में कोई खड़ा हो के बस वैलिडेट कर दे as a husband, as a partner, as a friend, as a father, as anybody who is ready to become the fire within beneath your wings, तो आप देखो आपकी उड़ान कहाँ से कहाँ जाती है. आपने अपने TEDx में you talked about वो चार लोग, you know, and you talked about, you know, people we should not care about, you know. Do you really believe in this thought or you feel कि some days, you know, criticism की ज़रूरत है, you know, I think there should be a thin line between, you know, कि उन चार लोगों की मत सुनो, but at the same time you should listen what people talking about you. Yes. You know, and how do you take this, you know, and when you know, आप कब डिसाइड करते हैं कि यहाँ मुझे इन चार लोगों की नहीं सुननी है और यहाँ मुझे इस क्रिटिसिज्म को लेना है. And yeah, so what is your take on this? So criticism is like chai. You know, you love the taste of it. जब उसमें concoction सही पड़ाओ. Okay. अगर आप क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से दे रहे हैं जिसमें चीनी सही मात्रा में है, चाय अच्छी तरह से खौलाई गई है, प्यार से पकाई गई है, तो क्रिटिसिज्म हमेशा आपको फायदा ही देगा. फॉर एग्जाम्पल योर बॉसेस फीडबैक, योर पेरेंट्स फीडबैक, तो ये सब चीज़ें पकाई जाती हैं बड़े प्यार से ताकि आप जो चुस्की लें आपको मज़ा भी आए, आपका दिमाग भी खुले और उस चाय को पीने के बाद आप अपने आप पे काम कर सकें. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू डोंट सर्व इट विथ लव, it becomes toxic.
एक इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे हो गया, वो क्रिटिसिज्म नॉइज बन जाता है, वो चाय आपके लिए टॉक्सिक बन जाती है, वो आपकी जीभ जलाएगी, इट विल बर्न योर टंग. And there's a very thin line of demarcation between the two, and everybody knows that. For instance, like I said, your friend's feedback is constructive, but your neighbor's opinion on the red lipstick that you're wearing, okay, that's absolute noise. Okay. Yeah, your husband discussing with you, hey, should we go for babies or not? Maybe it's a discussion, but your some relative telling you, hey, दो लड़कियों के बाद एक लड़का कर लो, is absolute utter noise. Cut it off, chop chop. या तो वो आपको सुनना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि क्या कौन सी चाय मेरे को पीनी है. बिल्कुल. Yeah. So you've been both a senior HR professional and a spoken artist, you know, two different arenas. And which hat, you know, corporate or creative, do you feel gave you more freedom, and which gave you more constraint? And how do you meditate between the two? You know? So both about, you know, as a freedom, as a constraint. Let's rephrase it again a little. I don't think it is about corporate versus art. Okay. I think it is about teamwork versus freelancing. Okay. जब भी आप किसी टीम के साथ काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, टुवर्ड्स वन गोल, आप एक फैमिली की तरह आते हैं, तब आप अकेले नहीं हैं उस प्रयास में. आपके साथ एक पूरी टीम है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है. आप अगर रूल्स फॉलो करते हैं, आपको ऑब्वियसली फ्रीडम कम मिलेगी, आपके पास कंस्ट्रेंट्स होंगे, आपको एक पैरामीटर दे दिया जाएगा और आप नाप तौल के उसके हिसाब से ही चल सकते हैं. यू कैन नॉट ट्रेस पास, यू कैन नॉट ब्रेक द रूल्स. आपको उस दायरे में काम करना है. वाई? बिकॉज द पर्पस इज वन. अगर हर कोई रूल तोड़ने लगे और हर कोई ये सोचने लगे कि मैं अपनी फ्रीडम से काम करूंगा, तो वो टीम कैसे चलेगी? Okay. जब आप एक नैया चला रहे हैं जिसमें 50 लोग एक साथ रोइंग कर रहे हैं, एक ने भी अगर अपनी स्पीड कम या ज्यादा की ना, तो वो डूब जाएगी. Okay. So the goal is different. It's a teamwork there. However, when you come to freelancing, अब कुछ ऐसे फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हैं, फ्रीलांस एडिटर्स हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांस कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं. उनके पास फ्रीडम है. They have the freedom to pick and choose what they want to do. Out of 10, they will pick up one option. Out of 10, they will pick up, you know, add an 11th option to it. Yeah. So I think it's not corporate versus art, but it is आपका pattern of earning for yourself. And what are the constraints while choosing, you know, दो में से जब एक चूज करना होता है, क्या क्या challenges होते हैं और उस वक्त पे कैसे आप मैनेज करते हो? Art में, because In you both, see, yeah. corporate where the rules are very simple. Everything is given, you have to follow it. Of course, you assert and you, as a policy maker, आप कुछ suggestions देते हैं. But again, it's a teamwork. It is never an individual's decision. It's an organization's decision, and you respect it. It's a team's decision. You respect it. But as an artist, आपके पास 50 चीजें थाली में परोस के दी गई हैं. सब नहीं खाओगे ना, indigestion हो जाएगा. Right. You have to pick and choose the things which is palatable at that moment. Right. At the beginning of the year, and I'm telling this here, I don't know whether I should or not, but at the beginning of the year, I manifested कि यार इस साल ना कुछ एक आध TEDx तो करना चाहिए, आना चाहिए. मतलब given the work that I'm doing, I wish I get an opportunity to go on a TEDx platform. So far, I've done 3 this year, and this month itself, I had to politely and humbly say no to 3 more. Yeah, because I knew कि अब जुड़ तो जाएगा, ये 5 टाइम TEDx स्पीकर से 8 टाइम्स TEDx स्पीकर हो जाएगा. बट विल आई बी एबल टू कंट्रीब्यूट मीनिंग टू दैट प्लेटफॉर्म और टू माई ओन वर्क? नो. It will be a checkbox. It will be a tick. So I've reached the threshold there, at least for the time being. Maybe I take it up next year. Maybe I take it up after 2 years. Right. But at this moment, मेरी थाली में वो मेरे लिए वो स्वादिष्ट डिश नहीं है जो किसी के भी फायदे का होगा. So I politely turn it down. Right. So obviously उस समय आपकी जो ज़रूरत हो, आपकी बॉडी में नमक की कमी होती है ना, आपको पता चल जाएगा. You will feel like having lemon water. Right. आपको जब ग्लूकोज डाउन हो रहा होगा ना, आपका हाथ जाएगा मिठाई की ओर. क्या बात है? तो अपनी थाली में जो सामान आया है, एक तो बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ उसको लें, क्या बात है? और दूसरा उसमें से कुछ एक ही चीज़ चूज करे. That formula has worked for me. क्या बात है, क्या बात है. On this end, with the gratitude, we are today, you know, here we're done with having conversation with Kena, and I hope you had a great time with us. And जाते जाते यही बोलूँगा कि उदास होवी, निराश होवी या दिल च कोई मलाल रखी. उदास होवी, निराश होवी या दिल च कोई मलाल रखी.
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾਇਆ ਸਫਰ ਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ आहा, क्या Alright. बात है, क्या Thank बात you. है. Thank you so much, Jasprit. I had a wonderful थैंक time. यू वेरी Thank मच, you so थैंक much. यू।